Hello kids, I'm mentor Neetu. We are doing Mathematics Whirlwind Class 8 by Brain Root. So today we are starting chapter 5, Square and Square Root. So very interesting chapter. Let's start. Getting ready. A pool is a structure designed to hold water to enable swimming. Pools can be built into the ground or built above ground. Pools can be of different sizes and shapes. आपने देखे होंगे. The largest of which is the Olympic sized swimming pool, approximately 50 meter long, 25 meter wide and 2 meter deep. Swimming pools became popular in Britain in the mid-19th century. Now, if the area of the square-shaped swimming pool shown here is 324 meters square, what will be the length of each side? Now one question is here, how can you find how much water a swimming pool can hold? Now introduction. In the previous chapter we have become almost familiar with exponential notation, and also we have studied about the numbers which can be obtained by raising rational numbers to integral exponents. When the exponent is 2, when the power is 2, the number thus obtained are called square numbers, and the number itself is the square root of the obtained square number. Here we will study in detail about square numbers and square root. अगर किसी भी नंबर की पावर 2 होती है, यानी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, उसका स्क्वायर. सो सी, square of a number is the number raised to power 2. Let's consider a statement 3 into 3 equal to 9. यानी हमने क्या किया है, 3 raised power 2. यानी अगर हम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस नंबर का स्क्वायर. सो 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3 एंड 3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9. ऐसे हमारे पास क्या है, 4 स्क्वायर 16. सो 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4 एंड 4 इज द square root of 16. Similarly, 5 square is 25. So 25 is the square of 5 and 5 is the square root of 25. Now perfect square. अब हम बात करते हैं perfect square number की. A perfect square is a natural number which is the square of another natural number. जो नंबर किसी का स्क्वायर बन जाए, जैसे 25 है, 16 है, 36 है, ये सब नंबर क्या होंगे, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर. जैसे अब 42 है, 42 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता. सो 42 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. सो कंसिडर टू नंबर्स 84 एंड 36. हमने क्या किया, 84 को फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. ऐसे हमने 36 के भी फैक्टर्स बना लिए, 2 into 2 into 3 into 3. So then the factors of 84 cannot be grouped into pairs of identical factors. आप देख सकते हैं कि 84 के जो फैक्टर्स हैं उनके हम ग्रुपिंग नहीं कर सकते, पेयर नहीं बना सकते. लेकिन जो 36 है, इसके जो फैक्टर्स हैं वो पेयर में अकर कर रहे हैं. इसका मतलब दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो अगर किसी भी नंबर के आपने चेक करना है कि वेदर इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, आपने उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. अगर उसके फैक्टर्स पेयर में अकर करते हैं तो इट मीन्स दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज नॉट. सो similarly 36 is a perfect square and it is the square of 6. Now some points given over here. If x is a rational number, then the square is x square. If p equals to m square, where m is a natural number, then p is a perfect square. All the prime factors of a perfect square number can be grouped into identical pairs. जो भी perfect square number होगा उसके जो भी prime factors होंगे वो pairs में अकर करेंगे. The square of a number except 1 is a multiple of 3 or exceeds a multiple of 3 by 1. Now the square of a number except 1 is a multiple of 4 or exceeds a multiple of 4 by 1. See now,
some information. A perfect square number is always expressible as the product of pairs of equal factors. जब आप क्वेश्चन करेंगे it would be clear to you. Now the following table enlists square of first 20 natural number. इस टेबल में हमारे पास 20 नेचुरल नंबर के स्क्वायर है. जैसे नंबर 1 है तो 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 दैट इज 25. ऐसे ही हम सब नंबर्स के, जैसे 14 है यानी 14 स्क्वायर 196, 19 स्क्वायर 361. ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल्स. Example 1, is 225 a perfect square? हमें चेक करना है 225 एक परफेक्ट स्क्वायर है. हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बना लेंगे. यू नो वेरी वेल फैक्टर्स कैसे बनाते हैं. जैसे हमने इसको 5 से डिवाइड किया, वी आर गेटिंग 45. फिर 5 से करेंगे, 5 9s are, then 3 3s are, like this. तो आपके पास जो है फैक्टर्स जो है वो क्या होंगे, आपके पास आए 3 into 3 into 5 into 5, यानी ये पेयर्स में अकर कर रहे हैं. इट मीन्स द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. और परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, वो 15 का. सो हेयर ऑन ग्रुपिंग द फैक्टर्स इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स वी फाइंड अ पेयर ऑफ 3 into 3 and 5 into 5. और कोई भी प्राइम नंबर अकेला नहीं है. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इट इज अ perfect square of 15. I hope this is clear to you. Simply आपने उसके factors बनाने हैं और उनकी grouping check करनी है. See, check yourself. 12 square is dash and it is read as. You can try this one. Now example 2, is 180 a perfect square? तो 180 के हम क्या बना देंगे, factors. 180 के factors क्या होंगे, 2 into 2 into 3 into 3 into 5. अब हमारे पास क्या हुआ, जो 2 और 3 है वो तो पेयर में है, बट 5 इज नॉट इन द पेयर. इसका मतलब 5 जो है वो अकेला नंबर है, एक सिंगल नंबर है. दैट्स व्हाई दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. राइट, तो सिंपल वे है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. The first one, a number ending in 2, 3, 7 or 8 is never a perfect square. कोई भी नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड हो रहा है वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल 42, 113, 117, these are not perfect square. Now the second one, a number ending with odd number of zeros, यानी 1 हो या 3 हो या 5 हो, तो वो भी क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. लाइक 1000, दिस नंबर 25,000, these are not perfect square. The third one, the square of even numbers are even. कोई भी इवन नंबर लोगे उसका स्क्वायर क्या बनेगा, हमेशा इवन. ओके, हेंस इट इज क्लियर दैट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन. आप देख सकते हैं 4 का स्क्वायर क्या है 16, 6 का स्क्वायर क्या है 36, 8 का स्क्वायर क्या है 64. तो जितने भी इवन नंबर है उनका स्क्वायर भी क्या आएगा, इवन नंबर्स. नाउ द नेक्स्ट इज द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड. अगर हम ऑड नंबर लेंगे उसका स्क्वायर हमेशा ऑड होगा. ओके, लाइक 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, तो स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड. Now the next is the square of a natural number is equal to the sum of the first n odd number. कोई भी नंबर है उसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, वो सम ऑफ, लाइक हेयर 2 है, लाइक 1 है, 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, 2 स्क्वायर इज 4. तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट 2 ऑड नंबर का सम यानी 1 + 3. 3 है यानी फर्स्ट 3 ऑड नंबर ले, 1, 3 and 5. तो दिस इज 9 ओनली. ओके, सो द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर. अगर 4 स्क्वायर है तो हम फर्स्ट 4 ऑड नंबर ले लेंगे, उनका सम.
ये भी 16 है, ये भी 16 है. वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. सो व्हेन द सम ऑफ ऑड नंबर इज इवन, it is a perfect square of even number, and when the sum of odd number is odd, it is a perfect square of odd number. जैसे as I told you, कोई even number होगा उसका perfect square even होगा, और कोई odd number होगा उसका perfect square odd होगा, right? तो ऐसे ही vice versa. Now one information is here, a perfect square when divided by 3 or 4 leaves the remainder as 0 or 1. कोई भी perfect square number होगा उसको आप 3 और 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 या फिर 1. जैसे 2 स्क्वायर 4 है, इसको आप 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर इज 1, और 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इज 0. ओके, ऐसे 6th प्रॉपर्टी है, 3 नेचुरल नंबर A, B and C are called a Pythagorean triplet if A square plus B square equal to C square. जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, इफ यू रिमेंबर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो ऐसे ही अगर 3 नंबर्स कोई हो जिसमें थर्ड नंबर कोई भी एक नंबर का स्क्वायर बाकी के 2 नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो, तो वो 3 नंबर्स क्या बना देंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट. जैसे 6, 8, 10 है, इसमें क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64. जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे इट वुड बी इक्वल टू 100. इट मीन्स 6, 8 और 10 जो है वो क्या बना रहे हैं, Pythagorean triplet, right? Now example 3, find out the square of the following numbers using property of perfect square. So A part, 5 square. 5 square as I told you, कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स. अब 5 है तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7, 9, तो सम इज 25. लाइक C पार्ट 7 स्क्वायर है तो फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स ले लोगे आप, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इसका सम है 49. ओके, ऐसे हमारे पास D पार्ट है 10 स्क्वायर, यानी आप क्या ले लोगे, फर्स्ट 10 ऑड नंबर, उनका सम करोगे, दैट इज 100. नाउ एग्जाम्पल 4, फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर. हेयर A पार्ट 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, और आपको पता है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. और आप याद रखो कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, 13 और 12 कंसेक्यूटिव है, 36 एंड 35 यानी एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, 68 एंड 67, 111 एंड 110. अगर कोई भी 2 नंबर ऐसे आते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो उनका जो डिफरेंस, उनके जो स्क्वायर का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, उनके सम के इक्वल. 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यानी आप क्या कर दो, दोनों को ऐड, 13 प्लस 12, आंसर इज 25. यू कैन चेक योर आंसर. 13 स्क्वायर यू नो वेरी वेल 169 और 12 स्क्वायर इज 144. जब इनको माइनस करेंगे आंसर इज 25. और यहाँ पे इन्होंने ये प्रॉपर्टी भी यूज की है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, वो क्या बन जाएगा, A प्लस बी इंटू A माइनस बी. ये आपको पता है अच्छे से. तो A माइनस बी तो यहाँ पर 1 होगा क्योंकि दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं. दैट्स व्हाई व्हाट इज द आंसर, दैट इज इक्वल टू देयर सम. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ वी आर कमिंग टू this part here, like B 36 square minus 35 square, तो हम क्या कर देंगे, 36 plus 35 यानी 71. 68 square minus 67 square, दोनों का सम कर देंगे, 135. then D part 111 minus 110 square, दोनों का सम, that is 221. Now alternate method of square. In this section we will study some alternate method of finding the square of 2 or 3 digit number. Now column method. This method is based upon an old Indian method of multiplying 2 numbers. The method for squaring a 2 digit number is based on identity. You know this formula, A plus B whole square is A square plus 2AB plus B square. तो इसकी हेल्प से हम फाइंड करेंगे. सो दिस मेथड इज नोन एज कॉलम मेथड.
To square a two-digit number AB where A is tens digit and B is the unit digit, we make 3 columns and write A square first column में, then 2AB and then B square in the columns as follow. आप देख सकते हैं कैसे करना है हमें, like this. Make 3 columns, column 1, column 2, column 3. जैसे suppose हमने नंबर लिया है 54 यानी A हमारा 5 है और B हमारा 4 है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में A स्क्वायर, कॉलम 3 में B स्क्वायर और कॉलम 2 में 2AB. तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5 स्क्वायर, हेयर 4 स्क्वायर, हेयर 2 इंटू 5 इंटू 4. तो 5 स्क्वायर इज 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 4 स्क्वायर इज 16. अब हम एडिशन करेंगे. कैसे ऐड करना है, दिस वन दे आर टेलिंग अस हाउ टू डू इट, ये हमने कर लिया. अब हमें इसे कैसे ऐड करना है, लुक एट दिस. जो लास्ट में 16 है, लास्ट कॉलम में 16 है, तो 6 को हम ऐसे ही लेंगे. हमारा लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 नंबर का वंस डिजिट, और ये जो 1 है 1 ऐड हो जाएगा हमारा कॉलम 2 में, यानी 40 प्लस 1 ये बन जाएगा 41. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 और ये 4 को हम फिर कर देंगे आगे प्लस. ओके राइट. तो हमारे पास क्या आएगा, वंस डिजिट आ गया 6, देन टेंस डिजिट आ जाएगा 1, फिर 25 प्लस 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 29. ओके हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है. नाउ सी वंस अगेन, आपने नंबर्स को लिख दिया. नाउ स्टेप 1 में हमने क्या किया, कॉलम 3 का जो यूनिट डिजिट है उसको अंडरलाइन करना है, और जो इसका टेंस डिजिट है इसको हम ऐड कर देंगे कॉलम 2 में. फिर ऐसे इसका जो यूनिट डिजिट बचेगा उसको हम लिख देंगे, और जो बाकी डिजिट होगा उसको ऐड कर देंगे कॉलम 1 में. यू कैन सी ओवर हियर लाइक 6, 1 इन्होंने ले लिया सेकेंड में, फिर ये बन गया 41, देन 1 बचा, 4 को हम ऐड कर देंगे 25 में. सो आंसर इज 2916. तो ऐसे आप बाकी क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं. लाइक सी एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल 1, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 85 बाय कॉलम मेथड. तो हम क्या करेंगे, 3 कॉलम्स बनाएंगे. फर्स्ट राइट A 8 एंड B 5. तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, A square, 2AB and B square, then 8 square, 5 square, 2 into 8 into 5. ओके अब हमारे पास यहाँ पे नंबर आ गया 64, 80 एंड 25. तो इसका यूनिट डिजिट हम एज इट इज लेंगे, 5 लिख देंगे और 2 को हम शिफ्ट कर देंगे कॉलम 2 में. इन दोनों को ऐड करेंगे, ये बन गया 82. फिर इसका 2 हम ले लेंगे और 8 को शिफ्ट कर देंगे कॉलम 1 में, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7225. सिमिलरली एग्जाम्पल 2, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 97 यानी A 9 और B 7 हो जाएगा. कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 बनाएंगे आप. तो यहाँ पे A स्क्वायर, 2AB एंड B स्क्वायर. तो ये क्या आएगा हमारे पास, 9 स्क्वायर, 2 इंटू 9 इंटू 7 एंड 7 स्क्वायर. कैलकुलेट करेंगे, इसका लास्ट डिजिट 9 है तो 9 छोड़ देंगे, 4 को शिफ्ट कर देंगे कॉलम 2 में, इन दोनों को ऐड करेंगे, 130 बन गया. 0 लास्ट डिजिट ऐसे ही ले लेंगे, 13 को ऐड कर देंगे कॉलम 1 में, तो 13 प्लस 81 बन जाएगा 94. यानी कॉलम 1 का हमें पूरा लेना है डिजिट, तो ये आ जाएगा 9409. ओके नाउ द नेक्स्ट इज पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर नंबर. कुछ पैटर्न्स है इसमें इंटरेस्टिंग. यू कैन सी लाइक 1 स्क्वायर इज 1, 11 स्क्वायर इज 121. अगर हम 311 ले लें 111 तो उसका स्क्वायर आएगा 12321. अगर हम 4 टाइम्स ले लें 1 1 तो इसका स्क्वायर आएगा दिस वन 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1. ऐसे अगर हम एक 1 और इंक्रीज कर देंगे, 6 आ गए तो 6 तक आ जाएगा, फिर रिवर्स. अगर हमने 7 ले लिए 1 तो 7 तक आ जाएगा, फिर रिवर्स 6 6 4 5 3 2 1.
ऐसे अगर 8 ले लिए तो 8 तक आएगा, तो लाइक दिस we have to move on. So this is very interesting pattern. Okay, now one more here, like 1 is 1 square. ऐसे अगर हम 121 लेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा 1 + 2 + 1 यानी ये 2 का स्क्वायर। यानी अगर हम 121 को हमने इसके जो डिजिट्स का सम होगा 2 + 1 + 1 ये बन गया 4 यानी 2 स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे नेक्स्ट नंबर था 1 2 3 2 1, इसके डिजिट्स का सम लिया वो कितना आएगा 9 यानी 3 स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट नंबर है उसका क्या आएगा, उसका आएगा 4 तक है तो 16 यानी 4 स्क्वायर। जो नेक्स्ट है 5 वाला उसमें क्या आएगा 25। ओके, तो लाइक दिस, राइट। सो वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ एग्जाम्पल 1, यूजिंग सुटेबल पैटर्न सॉल्व द फॉलोइंग। 333 स्क्वायर अपॉन 12,321। ओके, तो हमने क्या किया 333 को ब्रेक कर दिया 3 × 111। ओके, अब हमें 111 और इन दोनों को सेपरेट कर दिया 3 स्क्वायर × 111 स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमने कुछ नहीं किया अभी। 111 का स्क्वायर क्या बनता है 1 2 3 2 1 अकॉर्डिंग टू पैटर्न। अब ये नंबर सेम आ गई, होंगे कैंसिल, सो आंसर इज 9। देखो इस पैटर्न से कितनी इजी कैलकुलेशन हो गई, राइट। नाउ कॉन्सेप्ट हाईलाइट। स्क्वायर ऑफ a number is that number raised to the power 2. A perfect square is a natural number which is the square of another number. Now a number ending in 2 3 7 or 8 is never a perfect square, and a number ending with odd number of zeros is never a perfect square. ऐसे exercise 5.1 है based on such type of examples. You can try these one. Now we are coming to square root. अभी हमने स्क्वायर की बात की थी, अब हम आ जाते हैं स्क्वायर रूट पे। We have to find a number x which when multiplied by itself gives like 36, यानी x स्क्वायर 36 है। यानी x क्या है, यानी x क्या है, x is 6 because 6 we know 6 × 6 is 36. So हम यूज करेंगे एक सिंबल, दिस इज स्क्वायर रूट। अगर हमें लिखना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके, दिस इज फॉर स्क्वायर रूट, राइट। लाइक हियर सपोज a और b टू नंबर्स है सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू b, यानी a जो है वो क्या है b का स्क्वायर रूट। तो हाउ कैन आई राइट, आई कैन राइट रूट b इक्वल्स टू a, और स्क्वायर रूट में पावर क्या हो जाती है 1/2, स्क्वायर में पावर 2 होती है, स्क्वायर रूट में पावर होती है 1/2। जैसे रूट 81 इज 9 और 9 स्क्वायर इज 81, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 81 की पावर 1/2 वो क्या होगा 9। ऐसा क्यों हुआ, लाइक 81 की पावर 1/2 और वी नो 81 क्या होता है 9 स्क्वायर और 1/2 एज इट इज रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये दोनों कैंसिल हो गए, तो व्हाट इज आंसर, आंसर इज 9। ऐसे 13 स्क्वायर 169 है, यानी रूट ऑफ 169 इज 13। ऐसे 19 स्क्वायर इज 361 है, इसका मतलब 361 का स्क्वायर रूट क्या है 19, राइट। नाउ बी श्योर स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर ऑलवेज इंटीजर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज ऑलवेज 0। One puzzle is given over here, you can try this one. Now we are doing procedure for finding the square root by the prime factorization method. Very interesting method. हमें क्या करना है, कोई नंबर है उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसा कि नेम से क्लियर है, हमने क्या बनाने हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। सी, to find the square root of a perfect square by prime factorization we take the following steps. Resolve the given number into prime factors, then make pairs of similar factors, and then take the product of the prime factors choosing one factor out of every pair. हर एक पेयर का हम एक नंबर चूज करेंगे। सी,
लाइक एग्जाम्पल 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1024। हमने क्या किया, 1024 के फैक्टर्स बना लिए, ये 2 से डिविजिबल है, फिर 2 से ऐसे करते गए तो हमारे पास ये आ गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 2। इट मीन्स कितने पेयर बन गए, 5, 1 2 3 4 5। हमें जब भी स्क्वायर रूट करना है, यानी हमने जो फैक्टर्स लिए हैं उनके हमने क्या कर देनी है, पेयरिंग। अब जो जो फैक्टर्स पेयरिंग में है उनको हम बिना स्क्वायर रूट के लिख देंगे सिंगल टाइम। सो 2 यानी 2 आ जाएगा 5 टाइम्स। सो व्हाट इज आंसर, आंसर इज 32। यानी अगर आप 32 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1024, राइट। So there is some question, find the square root of root 400 and root 81. You can try these one. Now to find square root of rational number by prime factorization, यानी कोई rational number होगा तो उसका हमें कैसे करना है, सिंपल न्यूमरेटर का हम फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टर्स, डिनोमिनेटर का फाइंड करेंगे, देन वी कैन डू इट इजली। लाइक हियर इट इज गिवन वन रिलेशन लाइक रूट ए इंटू बी, कोई दो नंबर है जो मल्टीप्लाई में है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ बी। ऐसे कोई दो नंबर अगर डिवीजन में है यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। एग्जांपल 1, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दीज रैशनल नंबर 256 अपॉन 441। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर 256 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे एंड देन डिनोमिनेटर 441 के फैक्टर्स, इट इज डिविजिबल बाय 3, राइट। तो हमारे पास आ गए इन दोनों के फैक्टर्स, 256 के फैक्टर्स ये हैं और 441 के फैक्टर्स ये हैं। 256 के फैक्टर्स के बाद हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे तो दिस इज 16। ऐसे 441 में 2 पेयर बनेंगे 3 and 7, रूट लगा देंगे। जब हम अब इनको विदाउट रूट लेंगे 3 into 7 that is 21. So what is answer, 16 upon 21. ऐसे B पार्ट है 4 whole 29 upon 49। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम चेंज कर देंगे, 4 into 49 plus 29, ये नंबर बन जाएगा 225 upon 49। वेरी इजी, यू नो 225 के फैक्टर्स बनाएंगे, ये क्या आ जाएगा 5 into 5 into 3 into 3, यानी 2 पेयर आ गए 5 और 3 के, ये बन गया 15। ओके, ऐसे रूट 49 वो आ जाएगा 7, तो 15 अपॉन 7 इज द आंसर। और इसको हम चेंज कर देंगे मिक्स्ड में, 2 whole 1/7। वेरी इजी। Now example 2, find the smallest number by which 1100 must be multiplied so that it becomes a perfect square। अब 1100 यानी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इसे बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। तो हम पहले इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स हमने फाइंड किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आएगा 2 into 2 into 5 into 5 into 11। इस 11 सिंगल है, that's why this number is not a perfect square। So here we observe that prime number 11 is in unpaired form, so 1100 is not a perfect square। ये perfect square कब बनेगा, जब एक और 11 आ जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो ये नंबर क्या बन जाएगा हमारा 12,100। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो वो स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 into 5 into 11 यानी 110। So smallest number is 11 and the square root of the perfect square so obtained is 110। Very easy। Now example 3, a captain arranged his squad of 3600 soldiers in different rows in such a manner that the number of soldiers in each row is equal to the number of rows। So find that how many number of soldiers are present in each row। यानी जितने रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो।
तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे 3600 का। तो हमारे पास वो क्या आएगा, ऐसे फैक्टर्स बना के व्हाट वी आर गेटिंग 2 into 2 into 3 into 5 यानी 60. So each row has 60 soldiers and number of rows 60. Now concept highlight, the square of even numbers are even, the square of odd numbers are odd, and for any natural number n we have n square equal to sum of the first n odd natural number, and the difference between the square of two consecutive number is equal to the sum of the numbers or equal to twice the smaller number plus 1 or twice the larger number minus 1. Right? Now exercise 5.2 is based on such type of examples. You can try these one. Now we are talking about to find square root by division method. Very interesting. By the factorization method we can find the square root of only perfect square numbers, because the resolving of prime factors of other than these number is difficult to find. When the square number are very large, the method of finding their square root by prime factorization becomes lengthy and difficult. जब नंबर बहुत बड़ा हो उसमें prime factorization थोड़ा सा lengthy हो जाता है. In such case, we use a method of long division to find the square root. We will illustrate the long division method here. एक नंबर हमें given है, इसका हम find करते हैं square root. See this number, it is ones, tens, 100, 1000, lakh, 10 lakh यानी 30 lakh 8025. इसका हमें find करना है square root. See very carefully, look at the question. आपने क्या करना है, आपने स्टेप 1 में ग्रुप द डिजिट्स इनटू पेयर्स स्टार्टिंग विद द डिजिट इन द यूनिट प्लेस एंड द रिमेनिंग डिजिट इफ एनी ईच ग्रुप इज कॉल्ड पीरियड. हमने क्या करना है, यूनिट डिजिट से इसकी ग्रुपिंग कर देनी है टू नंबर्स लाइक 25, 80, 30. ओके, इसमें बन गए हमारे 3 पीरियड्स. अब हमने क्या करना है स्टेप 2 में, देन थिंक ऑफ अ होल नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू और जस्ट लेस देन द फर्स्ट पीरियड. फर्स्ट पीरियड में 30 है. अब कोई ऐसा नंबर सोचो जो 30 से छोटा हो या 30 के इक्वल, जो परफेक्ट स्क्वायर हो. अब देखो 30 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 30 से बड़ा 36 होगा, तो 36 तो हम नहीं ले सकते, हम लेंगे 25. सो 5 5s are 25. तो हम यहाँ पे भी 5 लिख देंगे, हम 5 से कर रहे हैं तो यहाँ हम 5 लिखेंगे और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हम लिख देंगे 5. ओके, सो 5 square is 25. नाउ स्टेप 3, पुट द क्वेश्चन above the period and write the product of divisor and quotient just below the first period. यानी जो भी है 25 वो हम पीरियड के नीचे लिख देंगे और यहाँ पे 5 लिया है तो यहाँ भी हमने 5 5s. ओके, अब हम जैसे सिंपल डिवीजन में करते हैं माइनस, इन दोनों को माइनस किया, हमारा बचा 5. देन नेक्स्ट पीरियड उतार लेंगे नीचे, दैट इज 80 580. नाउ कम टू दिस साइड. अब हम यहाँ पे नंबर्स चेंज करते जाएंगे. यहाँ पे क्या होगा, 5 into 5 किया था, अब जो हमारा डिवाइजर क्या बनेगा 5 plus 5 यानी 10. सपोज 3 लिया है आपने तो 3 plus 3 करेंगे, वो बन जाएगा 6. तो 10 बन गया. अब हम एक डिजिट यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर. जैसे यहाँ 580 बना है, ओके, तो हम क्या लिखेंगे 580 से छोटा नंबर ही लेंगे. तो हमारे पास 10 है डिवाइजर में, यहाँ पे हम एक डिजिट ऐसा लगाएंगे, अगर हम 3 लगाएंगे तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 4 लगाएंगे तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 5 लगाएंगे तो 5 से. तो 5 से करने पे हमारे पास 525 आ गया जो कि 580 से छोटा है. ओके, देन व्हाट टू डू, फिर हम इन दोनों को कर देंगे माइनस. फिर लेट्स सी, आई एम टेलिंग यू, देखो 105 they are saying subtract the product of divisor and quotient from the first period as I told you. इन दोनों को माइनस किया, 5 बचा. फिर हमने नेक्स्ट ले लिया 580. फिर यहाँ पे हमने डबल द क्वेश्चन एंड एंटर इट विद द ब्लैंक ऑन द राइट फॉर द नेक्स्ट डिजिट एज द नेक्स्ट पॉसिबल डिवाइजर. एज आई टोल्ड यू, हम एक डिजिट यहाँ पे छोड़ देंगे, वो हमें लिखना है.
हमें अपने आप सोचना है क्या लिखना है, जो लिखना है उससे ही हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 5 लिखा था तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो हमारा क्वेश्चन में आ जाएगा, यानी बन गया 55 और यहाँ पे आ गया 525। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5525, यानी माइनस करके तो ये आएगा 55। फिर हमें नेक्स्ट पीरियड लेना है, ये बन गया 5525। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने मल्टीप्लाई बाय 5 किया था, यहाँ पे था 105 प्लस 5 कर देंगे, वो बन जाएगा हमारा 110 और फिर हम एक डिजिट छोड़ देंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग हम डिजिट लगाएंगे, चाहे हम 4 लगाएं, चाहे हम 5 लगाएं, चाहे हम 6 लगाएं, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर। तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 555। तो यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर बचा 0, दैट्स वाई आंसर इज 555। ओके, तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 555। अभी आप और क्वेश्चन करेंगे तो देन इट वुड बी मोर क्लियर टू यू। लाइक एग्जाम्पल 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 54,756। ग्रुपिंग स्टार्ट फ्रॉम यूनिट डिजिट 1, 2। अब ये सिंगल डिजिट रह जाएगा, नो नीड टू वरी, अगर सिंगल है तो कोई बात नहीं, राइट। अब ये 5 है तो 5 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 4, और वो क्या होगा 2 2 जा 4, तो हमें यहाँ पे 2 लिखना है डिवाइजर में और यहाँ हम लिख देंगे 4। अब हम कर देंगे माइनस, ये बचा 1, नेक्स्ट पीरियड लेंगे 47। अब डिवाइजर क्या बनेगा 2 + 2 यानी 4, और हम एक डिजिट यहाँ पे लगाएंगे सो दैट ये इससे छोटा आए। अब 4 है, 4 के अगर आगे हम 2 लगाते हैं तो ये आ जाएगा 84, तो हमें 2 से करना पड़ेगा। अब हम 3 पे चेक करते हैं तो ये आ गया हमारा 129, हमने यहाँ पे लिख दिया 129। फिर यहाँ पे डिवाइजर चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 43 + 3 यानी 46। इन दोनों को माइनस कर देंगे, ये आएगा 18, देन नेक्स्ट पीरियड 1856। अब हम यहाँ पे एक डिजिट लगाएंगे ताकि ये नंबर डिविजिबल हो जाए। सो 4 लगाने पे इट इज गोइंग, सो आंसर इज 234। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे एज आई टोल्ड यू उतना जल्दी आपको समझ आएगा। जैसे बी पार्ट है 10 होल 151/225, इसको हमने ओपन किया तो नंबर हमारा बन गया 2401/225। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ न्यूमरेटर एंड स्क्वायर रूट ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये स्मॉलर नंबर है, इनको आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, और अगर आपने लॉन्ग डिवीजन से करना है यू कैन डू दिस, क्योंकि अगर क्वेश्चन मेंशन है बाय लॉन्ग डिवीजन देन यू हैव टू डू बाय लॉन्ग डिवीजन ओनली। तो यहाँ पे क्या है 2401 है, हमने ग्रुपिंग की। ओके, 24 से स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 16, सो 4 4 जा 16, माइनस कर दिया 8 बचा, नेक्स्ट पीरियड आया 801। यहाँ पे क्या आएगा 4 + 4 8, यहाँ पे एक डिजिट लगाएंगे 9 लगा देंगे और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 9 आ जाएगा क्वेश्चन में, सो रिमाइंडर इज 0। तो ये आ जाएगा 49 और इसका 15 और इसको आप चेंज कर देंगे, दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 2, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 5634 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है आप चेक करेंगे लॉन्ग डिवीजन से। आपने देखा ग्रुपिंग की 56 आया एंड 34, फर्स्ट पीरियड 56 है तो उसके नीचे 49 आएगा, यानी 7 7 सा करेंगे, फिर यहाँ पे 7 + 7 करेंगे 14 बन जाएगा, माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 34 ले लिया 734 बन गया। अब यहाँ पे एक डिजिट है 5 लगाया हमने तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास 9 बचा। जब भी रिमाइंडर बचा है इसका मतलब ये दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 9 इज द रिमाइंडर।
तो हम क्या माइनस करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी अगर इसमें से हम 9 को माइनस कर देंगे तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 75 का। वेरी इजी, सब्ट्रैक्शन में वेरी इजी, आपने सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना है और दोनों को माइनस कर देना है। नाउ एग्जांपल 3, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू द गिवन नंबर सो दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी जो गिवन नंबर है दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो हाउ टू मेक इट। तो हमने क्या करना है, पहले हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे, हम फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जैसे यहाँ पे ग्रुपिंग की तो ये आ गया 28, ये 0, 5, ये 67, 28 के नीचे क्या आएगा 25, 5 5 सा 5 + 5 करेंगे 10 आ जाएगा, रिमाइंडर बचा 3, नेक्स्ट इज 305। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे 2, यहाँ आ जाएगा 204, माइनस करेंगे ये बचेगा 101, फिर 67 को ले लेंगे नीचे, देन यहाँ पे आ जाएगा 104 एंड देन लिखेंगे 9, तो ये आएगा हमारे पास 726। यानी ये जो नंबर है, जो गिवन नंबर है, ये 529 के स्क्वायर से बड़ा है और 530 के स्क्वायर से छोटा है। You got this point? This number is lying between the square of 529 and 530. तो हम क्या करेंगे, हम 530 का स्क्वायर ले लेंगे और उसमें से जो गिवन नंबर है उसको माइनस कर देंगे, सो दैट इज 333। सी वंस अगेन, आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है, फिर जो रिमाइंडर बचेगा आपको पता है 726, इसका भी कुछ नहीं करना। व्हाट टू सी, आपने क्या देखना है, आपने देखना है जो ये नंबर है ये 529 के स्क्वायर से बड़ा आ रहा है क्योंकि रिमाइंडर बच गया इसमें, और ये छोटा होगा 530 से, नेक्स्ट नंबर से। 529 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 530, यानी इट इज लाइंग बिटवीन 529 स्क्वायर एंड 530 स्क्वायर। और हम फाइंड कर लेंगे 530 का स्क्वायर क्या होगा, कैलकुलेशन करेंगे तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 530। इसमें से हम गिवन नंबर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सो दैट इज द आंसर। ओके, so I hope this is clear to you. So the next is example 4, find the greatest 6-digit number which is a perfect square. We know 6-digit number क्या है, greatest 6-digit number 6 × 9। अब हम देखते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया, ग्रुपिंग की, वी आर गेटिंग 999 और रिमाइंडर में आ गया 1998, यानी ये जो नंबर है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, माइनस करके वी आर गेटिंग दिस, सो आंसर इज this one. So this is the greatest 6-digit number which is a perfect square. Now we are talking about square root of decimal number. The square root of a decimal number can be obtained by the following steps. The first one, the number of decimal places is made even by putting a 0 if necessary. Then second, now mark periods as usual, that is from right to left, and find square root by long division method. Then the third one, put a decimal point in the question as soon as the integral part is used up. Okay, see, like example 1, find the square root of a part 0.0003809। पहले तो आप काउंट कर लो कितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन है यानी पेयरिंग हम इजीली कर सकते हैं। So this, okay. Then what to do? Since we have even number of decimal places, we mark periods and find square root by long division method. अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। अब डेसिमल पार्ट स्टार्ट हो गया, दिस इज 0 नॉट डिविजिबल, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पीरियड में 3 है, 3 के नीचे आएगा 1, सो 1 1s are, ओके। देन 3 - 1 2, नेक्स्ट पीरियड 88, यहाँ बन गया 29, मतलब 2 बनेगा, देन यू विल राइट 9,
देन 29 इंटू 9 और यहाँ आ जाएगा 9, 261। फिर माइनस करेंगे 27 बचेगा, नेक्स्ट पीरियड लेंगे 2709, यहाँ बन जाएगा 38, 29 प्लस 9 और फिर यहाँ पे हम एक डिजिट लगाएंगे और फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी आर गेटिंग दिस वन. Now similarly we have B part over here, so you can try this one on your own. I am telling you the next one. Example 2, find the square root of 9.63497 up to 3 decimal places. यानी डेसिमल के बाद हमें 3 डिजिट्स चाहिए. तो पहले हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेसिमल के बाद है वो 5 नंबर्स हैं. द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज ऑड, तो हम इसे पहले इवन बनाएंगे, यानी हम पीछे लगा देंगे 0, 7 के पीछे हम लगा देंगे 0. फिर हम करेंगे ग्रुपिंग. डेसिमल के बाद जो ग्रुपिंग करोगे आप वो यहाँ से स्टार्ट करोगे 10th डिजिट से, 63, 49, देन 70. ओके, एंड 9 सिंगल. नाउ 3 3s are 9. अब 3 + 3 6 आ जाएगा. यहाँ पे हम एक डिजिट लिखेंगे, माइनस करेंगे 0, डेसिमल पार्ट स्टार्ट, तो डेसिमल क्वोशिएंट में पीरियड को नीचे उतारेंगे 63 है तो यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये बिग हो जाएगा. तो 1 लगाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. देन 61. ओके, नाउ 61 + 1 ये बन गया 62. इन दोनों को माइनस करेंगे, आएगा 2. नेक्स्ट पीरियड लेंगे 49. 249 जो है, अगर हम 62 के पीछे अगर हम 1 भी लगा देंगे तो इट इज बिकमिंग ग्रेटर, यानी इससे डिविजिबल नहीं हो रहा. इसके लिए हमें नेक्स्ट पीरियड लेना पड़ेगा. तो हमें यहाँ पे भी 0 लगानी है और यहाँ पे भी 0 लगानी है. ओके, देन हम यहाँ पे एक डिजिट डिसाइड करेंगे इस नंबर के अकॉर्डिंग. तो हमने डिसाइड किया 4 लाइक दिस. तो डेसिमल में जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है इट्स इन्फिनिट, इट्स गोइंग ऑन. ओके, इसको हम जितने मर्जी स्टेप्स कर लें. यहाँ पर हमें अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस बोला है, तो दिस इज द आंसर, वी कैन लीव इट. सो आंसर इज 3.104. नाउ एग्जाम्पल 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ √7 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस. यानी करेक्ट टू, तो हमें क्या करना है, पहले हम फाइंड करेंगे 4 डेसिमल प्लेसेस तक, फिर हम उसको कर देंगे राउंड ऑफ. इसमें था अप टू, तो हमें 3 तक हमने फाइंड किया, लीव इट. यहाँ पे है करेक्ट टू, तो हमने क्या करना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है एंड देन उसको राउंड ऑफ करना है. अब आप कहोगे यहाँ पे तो 7 है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 0 0 ले लेंगे. ओके, तो 7 के नीचे 4 ही आ सकता है, सो 2 2s are 4. ओके, देन 7 - 4 करेंगे 3, यहाँ बन जाएगा 2 + 2 4. अब नेक्स्ट लेंगे पीरियड 300, यहाँ पे एक डिजिट लिखेंगे, 6 लिखा हमने, 276 माइनस किया, आएगा 24. फिर नेक्स्ट पीरियड लिया 2400, यहाँ पे 46 + 6 करेंगे, 52 बन गया. फिर इसके अकॉर्डिंग हम डिजिट चूज करेंगे, हमने 4 किया तो 4 से ही मल्टीप्लाई और 4 आ जाएगा क्वोशिएंट में. फिर ये नंबर आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे, देन नेक्स्ट पीरियड लेंगे 0 0. ओके, एंड हेयर ऐड करेंगे 524 + 4 528. फिर नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे, फिर उससे मल्टीप्लाई करके वी विल गेट द वैल्यू. फिर माइनस करेंगे, फिर नेक्स्ट पीरियड अगेन 0 0. यहाँ पे फिर एडिशन करेंगे 5290. फिर वी विल राइट 1 मोर डिजिट लाइक दिस. हमें क्या चाहिए, हमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेने हैं. ओके, तो हमने अब हमारे पास आ गया 2.6457 और हमें आंसर देना है करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, यानी राउंड ऑफ करते हैं, यानी हम देखेंगे 4th डिजिट ये 7 है जो कि मोर देन 5 है, तो ये बन जाएगा हमारा 2.646. So 1 point, to find the square root of a decimal number correct up to n places, we find the square root n + 1 places and round it off to n places. हमें एक एक्स्ट्रा फाइंड करना है और फिर उसको राउंड ऑफ करना है. Like example 4, find the value of √23,104 and then evaluate this one. पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लें लॉन्ग डिवीजन से, वो क्या आ जाएगा 152. अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसमें क्या है
रूट 23,104 अपॉन 100 है, और यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड बाय 23,104, कितनी जीरो आएंगी नीचे, 4 जीरोस अकॉर्डिंग टू डेसिमल पॉइंट। तो ये आ जाएगा 152 अपॉन 10, 152 अपॉन 100 स्क्वायर रूट के बाद। सो आंसर इज 10. Now estimation of square root. To estimate the square root of a given number, we should follow the given steps. The first one, write the square root of the number to nearest 100 for 3-digit number, nearest 1000 for 4-digit number, and so on. The second one, now estimate it to the nearest 10 for 3-digit number and to the nearest 100 for 4-digit number. Similarly, narrow down to the nearest ones. आप क्वेश्चन देखेंगे आपको क्लियर होगा. Like example 1, estimate the square root of 633. आप देखो 20 का स्क्वायर क्या है, 400, और 30 का स्क्वायर क्या है, 900. तो 633 जो है वो किसके बीच में है, 20 स्क्वायर और 30 स्क्वायर में. अब आप देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, और 26 का स्क्वायर क्या होगा, 676. यानी ये जो 633 है 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में है. ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस रूट 633 लाइज बिटवीन 25 एंड 26. तो हमने क्या किया, 25 से एक बड़ा ले लिया, 25.5 ले लिया, उसका स्क्वायर फाइंड किया जो आया 650.25. यानी ये जो 633 है 25 और 25.5 के स्क्वायर के बीच में है. तो हमने इसका एस्टिमेट क्या कर दिया, 25.5, जिसके नियर है वो. नाउ एग्जांपल 2, एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 8264. अब आपको पता है 90 का स्क्वायर 8100 और 100 का स्क्वायर 10,000. तो ये जो इन दोनों के बीच में है 90 और 100 के स्क्वायर के, हम देख लेते हैं 95 का स्क्वायर आएगा 9025. यानी ये नंबर जो है 90 और 95 के स्क्वायर के बीच में है. ओके, अब आप देख सकते हो 8264 नियरेस्ट किसके है, 8100 के. हम क्या करेंगे, 90 का नेक्स्ट ले लेंगे, 91 देखते हैं. इट इज 8281, यानी इट इज लाइंग बिटवीन 90 स्क्वायर एंड 91 square. Okay, so it is nearer to 8264 is nearer to 8281. तो हम क्या करेंगे, 90 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा ले लेंगे, यानी 90.9 का स्क्वायर चेक करेंगे. इट इज़ अराउंड दिस, यानी इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आ गई, 90.9. आप जितने प्रैक्टिस करेंगे इट वुड बी क्लियर टू यू. देयर इज वन स्क्वायर रूट टेबल गिवन लाइक x एंड रूट x लाइक दिस. लाइक 51 है तो उसका रूट गिवन है, 58 है उसकी रूट गिवन है, 83. तो दिस वन टेबल इज गिवन ओवर हियर. सो एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट बाय यूजिंग स्क्वायर रूट टेबल. वी हैव लर्न 2 methods to find the square root, prime factorization and division method. At times, finding the square root of a number becomes very lengthy and tedious. Square root tables are available, and with the help of these tables, we can estimate the square root of a number till certain decimal places. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल 1 है, यूजिंग स्क्वायर रूट टेबल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 23. तो हम टेबल देखेंगे, वहाँ पे रूट 23 की वैल्यू क्या है, 4.796. ऐसे 42 की वैल्यू क्या आएगी, 6.481. ऐसे 93 की वैल्यू देखेंगे, दैट इज 9.644. अब हमारे पास बी पार्ट है 79/16. इसका रूट करना है तो दोनों की वैल्यूज देखेंगे और फिर इनको डिवाइड कर देंगे. ओके, ऐसे हमारे पास रूट 22 इंटू 36 है, तो 22 की वैल्यू एंड 36 की वैल्यू दोनों को पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. देन एफ पार्ट रूट 26/√25, ये तो हमें पता है 5 होता है, इसकी वैल्यू 5.099 है, दोनों को डिवाइड कर देंगे. ऐसे रूट 64 इंटू 53 है, इसकी वैल्यू 8 है, 53 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे टेबल से, and then we will get the answer.
So there is concept highlight for any natural number m greater than 1, 2m, m square minus 1 and m square plus 1 is a Pythagorean triplet. कोई भी नंबर होगा अगर उसका हम ट्वाइस लेंगे या फिर उसके स्क्वायर में से माइनस करेंगे 1 और उसके स्क्वायर में 1 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा Pythagorean triplet. The square of a number except 1 is a multiple of 3 or exceeds a multiple of 3 by 1. The square of a number except 1 is a multiple of 4 or exceeds a multiple of 4 by 1. The square root of a number x is that number which when multiplied by itself gives x as a product, and the square root is written as this one, root x. 5.3 is based on such type of examples. You can try these one. Now we are coming to MCQ. The first one, if m equal to n square, then square root of m is, what is the square root of m? That is n. The second, if the square root of a number is y, then the number is what? If the square root of a number is y, यानी किसी नंबर का स्क्वायर रूट y है तो वो नंबर क्या होगा? वो नंबर क्या होगा? यानी y स्क्वायर. Okay, so the third one, the difference between the square of 21 and 20 is, आप कर सकते हैं 21 square minus 20, as I told you 21 plus 20 यानी 41. Now the fourth one, which of the following is a Pythagorean triplet? You can just find out. The fifth one, for a perfect square x and y, root x into y is equal to root x into root y. C part. The sixth one, if a number has a square root, then its unit digit is, देखो 2, 3, 7, 8 वाले कभी भी perfect square नहीं होंगे, तो that is 1. Okay. The seventh, square root of a negative number is always positive, because minus minus becomes plus. I hope this is clear to you. So thank you for watching this video. Stay connected with us till the next video. Have a nice day. Take care.